Welcome to this edition of This Morning on Republic TV. I'm Rukma. Let's begin with our top story. In the wake of aggressive protests across 10 states in India, including Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal and Haryana, the government has tried to allay fears of aspirants by announcing several measures related to the Agnipath scheme. खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। In view of the dissatisfaction over the proposed Agnipath scheme, the government made several big announcements to allay the fears of the young aspirants. Age bar is raised, employment fears are allayed, job reservations are confirmed. The Defence Minister also announced 10% reservation for Agniveers in all Defence Ministry and PSUs, CAPF and Assam Rifles. The Agniveers will also be inducted in Civil Aviation and Shipping Ministries, while the age limit for the first batch was raised to 28. There's also age relaxation for Agniveers for Defence PSU recruitment, with top officials also issuing assurances. Agnipath scheme for enrollment in the armed forces. The age bracket for the scheme is 17.5 to 21 years. I'm pleased to announce that the upper age limit for the first induction has been increased to 23 years of age. This change would permit a larger section of the youth to enroll as Agniveers. And the Union Minister appealing to remain calm. मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा। While the leaders try to assuage tension over the scheme, आत्मनिर्भरता की उड़ान। मैं बताना चाहता हूं अपने युवा साथियों को कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से देश की सेवा की है और आगे चल करके ये अग्निपथ से निकला हुआ अग्निवीर दुनिया में अपने आप को स्थापित करते हुए देश रक्षा के लिए हमेशा जाना जाएगा। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। but questions continue to be raised. आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में, तो ये तो ठीक नहीं है। And with many claims and misinformation doing the rounds, will the protest be contained or continue to singe peace? Bureau Report, Republic TV. And in other news, again regarding the violent and misinformed protests, they continue in Bihar against the Agnipath scheme. Bihar police have said that the investigations are underway and confirm that a number of arrests have been made in the case. As Bihar continues to witness rage over the Agnipath scheme, the protest, violence and arson continues. And even a school in Bihar was not spared by the stone pelters. Even as the investigation is underway, Bihar police confirmed a number of arrests in the case. दाऊदनगर में जो घटना हुई है उस क्रम में वहाँ 2 FIR हुआ है और कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और हमारी टीम सक्रिय है और भी छापेमारी जगह चल रही है। उनका सत्यापन हुआ है वीडियो फुटेज के थ्रू और वहाँ तकनीकी अनुसंधान के थ्रू कुछ पता चला था, कुछ लोग वहाँ सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यम से उनके बारे में पता चला है, तो उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जो भी दोषी इसमें संलिप्त हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में, उनकी पहचान की जाएगी और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। Meanwhile, BJP State President Sanjay Jaiswal blames the state government on his statement that the government officials and police are a mute spectator to the protest in Bihar. 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है, कहीं पे भी कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया।
हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। JDU President Rajiv Ranjan Singh hit back on the BJP state president on his statement. भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। While it has also come to light that children were paid to agitate on streets against the scheme with which they have no relation at all. मैं यहाँ डाकबंगला चौराहे पे मौजूद हूँ और पप्पू यादव की टीम आ रही है। देखिए ये बच्चे भी हैं यहाँ पर पप्पू यादव का फोटो लिए हुए। बाबू तुम लोग कहाँ आए हो? पप्पू यादव जिताने के लिए। हाँ तो वोटर बहुत अच्छे अंकल। हाँ हमसे खाना देते हैं, कभी भूखे नहीं रहने देते। कितना पैसा दिए हैं? अभी हमसे बहुत देते हैं। क्या दिए हैं? पैसा दिए फिर का चलो हमारे संग, हमारे संग का चलो। कितना पैसा पे? कितना पैसा दिए? 100 रुपया। 100 रुपया दिए हैं? 100 रुपया दिए हैं? हाँ और क्या दिए? और खाने के लिए चीज। तुमको कितना पैसा? हमको 100 रुपया। When confronted by Republic, Jan Adhikar Party chief Pappu Yadav reiterated his displeasure with the scheme calling for a statewide band. इतने दिन जो सैनिक थे, क्या वो अग्निवीर नहीं थे? उन्होंने भारत को नहीं बचाया, उन्होंने सुरक्षा नहीं की थी, उसको आप गाली दे रहे हो उसको। और जब आप वन पेंशन, क्या निविदा और संविदा जब पूरे भारत में बंद हो रहा है तो संविदा पर बहाली क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो संविदा बंद करो। Despite several proof of protest and violence being pre-planned, would now the state governments act against the perpetrators? Bureau Report, Republic TV.